میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں اور محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کے بے حد اصرار پر ہم نے ہر منگل کو سلسلہ وار بیان کے علاوہ ہر منگل کو ایک بیان اپنا مکمل کرنے کا ارادہ اور نیت کری ہے۔ آپ لوگ اپنا سجھاؤ اور خیالات پیش کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صرف قرآن کی اتباع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیے ہیں۔ قرآن کی اتباع اللہ کی اتباع ہے اور اللہ اور رسول کی اتباع بھی اللہ کی اتباع ہے۔ رسول نے جو کچھ ہم کو بتایا وہ سب اللہ کے حکم سے بتایا، اللہ ہی نے بتوایا۔ کوئی بھی بات اپنی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کری، لیکن آج کیا ہو رہا ہے، قرآن کی اتنا اتباع ہو رہی ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے لیے گروہ بنا کے اس میں اپنے اپنے مولانا منتخب کر لیے، دیگر کتابیں منتخب کر لیں۔ بس ہم اپنے مولانا کی اتباع کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک یہ پورے کا پورا ایک فتویٰ ہے اللہ کا۔ یہ پورے کا پورا قرآن پاک اللہ کا کلام، اللہ کا فتویٰ ہے، جس میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، ہماری شریعت کس کام کی اجازت دیتی ہے، کس کام کی نہیں دیتی ہے، یہ سب قرآن پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ اور ہمارے پیارے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے وقت کہا تھا
کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں آپ نے فرمایا قرآن پاک، دوسرے کچھ وقفے سے میری سنت۔ آج ہر آدمی، اچھے سے اچھا آدمی بھی قرآن سے اپنا میل ملا لے کہ اس کے کتنے عمل قرآن کے طرز عمل پر ہیں۔ بالکل ہم صاف بات کرتے ہیں، نہ ہم کسی دنیا کے مفتی سے متاثر ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا نہ علاماؤں سے متاثر ہوتے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی متاثر کر سکتا ہے۔ ہم صرف اس شخص سے متاثر ہیں، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ۔ جو شخص پورے کا پورا قرآن کے طرز پر زندگی گزارے گا، ہم اس سے متاثر ہو جائیں۔ باقی ہم کسی سے متاثر ہونے کے نہیں ہیں۔ ہم ایک مبلغ ہیں۔ مبلغ کے معنی ہوتے ہیں تبلیغ کرنے والا، اور تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانے والا۔ اللہ قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والا۔ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول سے کہا بھی کہ ہم جو بات جس طرح سے کہہ رہے ہیں، اس کو نہ سود بھر گھٹا کے پیش کرنا، نہ بڑھا کے۔ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح اس کا کچھ حصہ نہ چھپانا، نہ اس میں کچھ حصہ بڑھانا۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیے کیا ہے وہ سونامی آئے، طوفان، کیا ہے وہ بھوکمپ، زلزلہ آئے، اس کا کوئی کیندر ہوتا ہے۔ کیندر آتا تو وہ بہت سے ملکوں میں بہت بڑی جگہ پہ، لیکن یہ آیا کہاں سے، اس کا کیندر کیا ہے، بندو کیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے عذاب اس وقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، جتنے عذاب اس وقت آ رہے ہیں، ان سب کا کیندر ہندوستان ہے۔ جتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بے ادبی، بے عزتی یہاں کی جاتی ہے، کہیں ملک میں نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے ملکوں میں قرآن سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور قرآن پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی گندی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اسے سمجھ کر پڑھنے پر پابندی کسی نے لگا رکھی۔ جو شخص قرآن پر پابندی سمجھنے پر لگائے، کیا آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں، یا کوئی مسلمان ایسا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ قرآن کو دیگر تمام کلاموں پر برتری ہے۔ غور فرمائیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ سننے کی نہیں، یہ محسوس کرنے کی، گودے میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی سنا کل بھول گئے۔ کیا فتویٰ ہے کہ قرآن دنیا کی تمام دیگر کلاموں پر برتری ہے۔ آج ہندوستان کے اندر قرآن ہو رہا ہے، قرآن جہاں ہوتا ہے وہاں آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے اتر جاتے ہیں، لیکن یہ انسان جو اغل بغل موجود ہیں،
इनके कानों में आवाज़ जा रही है, मगर ये नहीं आके बैठते। इतने बड़े शहंशाहों के शहंशाह, हमारी ज़िंदगी और मौत के मालिक, जिनके हम ग़ुलाम हैं, जिनके हम मोहताज हैं, उसका कलाम हो रहा है और हम जो हैं मैं में पड़े हुए हैं, मैं में। तो ये बेइज्जती है या नहीं है? है बेअदबी, है तो किसकी है? अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है। आप हमारे में वीडियोस पे तारीख़ इस्लाम पढ़ सुन रहे हैं। हमारे प्यारे नबी ने इस पैगाम को कुरान के सारी इंसानियत तक पहुंचाने के लिए कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाई हैं, कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाई हैं, कैसे कैसे ज़ख्म बर्दाश्त किए हैं, तब जाके ये हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। और आज हम उसकी कदर नहीं कर रहे, हम उसकी कदर नहीं कर रहे। हदीसें अगर कुछ जान रहे होंगे, कुछ नहीं जान रहे होंगे, हदीसों में है कि जब कोई भी बीमारी या कोई चीज़ पूरी दुनिया में फैल जाए तो वो बीमारी नहीं होती, वो हादसा नहीं होता, वो अल्लाह का अज़ाब होता है, अज़ाब। और साफ हदीसों में लिखा है कि जब जब नाफरमानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, गुमराहियाँ बढ़ जाएंगी, तो दुनिया पर हम ऐसे ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे कि जो तुम्हारी तिक्का बोटी करके रख देंगे, चटनी पीस के रख देंगे। कोई को हम गुनहगार नहीं मानते। ये तो बातिल का तरीक़ा है कि अपनी तरफ से ध्यान हटाने की तरफ वो उधर मुल्क में ले जाएगा और उस मज़हब पे और इस मज़हब पे। कुछ नहीं, हमने तारीख़ इस्लाम पढ़ी है, हमने एक पूरी हयात तैयबा का मुतालबा किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या सलूक था आपका दुनिया के तमाम इंसानों के साथ, और हमारा कुरान क्या हुक्म देता है, गैर मुस्लिमों के साथ भी हुस्न सलूक करने का देता है। ये इतना ख़तरनाक वक्त है कि इस वक्त, पहले हम बता दें, जंग बदर के मौके पर मदीने मुनव्वरा के अंदर 3000 मुसलमान मौजूद थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे बयानात में, और वो बातिल से भी मिले थे। वो दारे असल मुसलमान नहीं, मुनाफिक थे। जब ये अल्लाह के रसूल ने सदा लगाई जिहाद के लिए, तो सिर्फ 313 बड़ी मुश्किल से निकले, बाकी सब मुनाफिक। आज हमारे अकाबर अइम्मा जाके पूछ लीजिए, उससे 100 गुना ज़्यादा हमारे बीच में मुनाफिक भरे पड़े हैं। भरे लफ्ज़ गलत है, कहते उबल रहे हैं। आप हर शख्स को ये शक्ल में देखेंगे, दाढ़ी, टोपी, माल। और अगर आपको किसी को ये नहीं, आपको जानना है ये कौन है, तो आप उसका नाम पूछते हैं। मेरा भाई, वो वक़्त चले गए कि अगर इरफान नाम है तो मुसलमान ही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि शकील नाम कैसा? अगर मैं शकील का नाम लिया तो क्या समझे आप, किसी मुसलमान का नाम लिया? शकील इस वक्त वो इमाम मेहदी का दावा कर रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मुसलमान हैं वो हुए, नाम तो उनका मुसलमान ही है। तो मुसलमान तो वो है जो शरीयत के पास चलता है। खाली नाम रख लेने से, खाली वेशभूषा बना लेने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। और मुझे
मैं किसी यहाँ से किसी मुसलमान से खुश नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ ये बात अनपढ़ों की नहीं कर रहा हूँ, कम इल्मों की नहीं कर रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े इल्मों वालों के को भी पूरी तरह से शरीयत में दाखिल नहीं पाया। अभी कोई फतवा जारी हो जाए दारुल उलूम देवबंद से, फतवा जैसे कुरान का फतवा ये नहीं आप जानते, इसी कुरान से सारे फतवे दिए जाते हैं। क्योंकि आप कुरान नहीं जानते, हम नहीं इतनी बारीकियां जानते हैं। पूरी टीम मुफ्तियान की बैठती है, फिर वो इसका फैसला शरीयत के उससे हुक्म जारी करते हैं। अब उसको भी सब रिलीज़ कर दिया जाता है और रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद मुफ्ती अगर उस काम की इजाज़त देते हैं तो कहाँ से सही है। फतवा किसी अच्छे आदमी के खिलाफ नहीं जाता, फतवे जो गलतियां करते हैं उनके खिलाफ जाता है। वारंट किसके खिलाफ कटते हैं? मुजरिमों के खिलाफ कटते हैं। तो अफसोस कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अजीब किस्म के मुसलमान हैं। कोई बुराई को रोकने तही नहीं है, सब लफ्ज़ी से बयानबाजी। क्या तारीख़ इस्लाम नहीं पढ़े? क्या तबलीग किस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी? मैं बताऊंगा। जो चीज़ हमारी शरीयत में नहीं है हम वो काम नहीं कर सकते अगर हम मुसलमान हैं। हम झूठ नहीं बोल सकते। और ऐसे ही मुसलमान तैयार किए थे जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही थे सहाबा जिनको आप कहते हैं। झूठ नहीं बोल सकते। किसी को चिढ़ाना, किसी को गाली देना, किसी को सताना, ये इसकी इजाज़त हमारी शरीयत नहीं देती, नहीं देती। हम हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जो शरीयत के खिलाफ है। फिर मेरा जो भी हो हम शहादत के लिए तैयार हैं। अब बर्थडे आने वाली है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मनाई जाती है हिंदुस्तान में। पहले तो यही नहीं मालूम हिंदुस्तानी वासियों के कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश का दिन कौन है और वफात का दिन कौन है। 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है और हम 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं, शहर सजाते हैं और सवेरे उठ के फिर झंडा निकलता है। अल्लाह जाने कि वो झंडा हमें तो तारीख़ इस्लाम में कहीं मिला नहीं। फिर उसका नतीजा क्या होता है? अमीनाबाद से लेकर ईदगाह ऐशबाग तक 50,000 औरतें लड़कियां सब सड़कों के पर बैठी हैं। जिसको आपने कभी ना देखा हो उसको भी आराम से देखिए, घंटों देखिए, झंडा नहीं उन्हीं को देखते रहिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी सही हदीस। हर वो आंख जिनाकार है, नामहरम को देखने वाली हर आंख जिनाकार है। अब बताइए है कोई जवाब? हमको अगर कोई किसी के पास जवाब हो तो ज़रूर लिखें। ये तिरमिज़ी शरीफ साहसित्ता हदीस कि नामहरम को देखने वाली हर आँख जिनाकार है और जिना की सज़ा आप जानते हैं, वो अलग एक उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा मौजू ये है कि हम किस बुराई, हमारा जो इस्लाम है
وہ جب آیا اس وقت دنیا کی اگر ہم پوری حالت بیان کریں گے تو گھنٹوں لگ جائے گی. مختصر میں بتا دے دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو وہاں نہ موجود ہو. خالی نشان نہ لگانے کے لیے، نشانہ لگانا سیکھنے کے لیے ہاتھ سٹ کر آدمیوں کے، انسانوں کے نشانے لگائے جاتے تھے. لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. انسان نام تھا لیکن جانوروں سے بھی بدتر تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کوئی برائی اپنے پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے تھے. کوئی برائی نہیں. سود حرام قرار دے دیا. لڑکیوں کو زندہ گاڑنا، عورتوں کو عزت عطا کری. وہ عزت عورتوں کو عطا کری جو کہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. آج پڑھے لکھے بھی جب اگر کوئی عورت دین کے خطاب اسلام کے خلاف بولتی ہے تو بس سیدھا سعید جو دکھ رہا ہے وہ بولتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان، کہ وہ یہ کہہ رہی ہے. میں نہیں، میری بات الگ ہے. میں یہ دیکھتا ہوں یہ مسلمان ہے ہی نہیں. یہ مسلمان ہے ہی نہیں. یہ جو آپ یہودی سنتے ہیں، معلوم ہے کون ہوتے ہیں یہودی؟ اور بنی اسرائیل یہودی اہل کتاب، یہ تینوں چیزیں انہی کو کہا جاتا ہے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے اور تورات ان کی کتاب تھی. لیکن انہی نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا. قرآن کو ماننے سے انکار کرا، قرآن کو نہیں مانا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی نہ مانا. یہ کافر ہیں. یہ گنہگار نہیں. گنہگار تو ایک نہ ایک دن باہر آ جائے گا سزا بھگت کی. یہ کافر ہیں. اب اپنا محاسبہ کریے. اور صاف لکھا ہے، ایک بیان اس پہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سی حرکتیں ہیں، وہ کون کون سے عمل ہیں جن کو کر کے آدمی تھا تو ابھی تک مسلمان، لیکن اب مسلمان سے خارج ہو گیا. یہ کوئی نہیں دیکھتا. اسی طرح مردوج، وہ کیا نام، سلمان، جنہیں نے شیطانی آیات لکھی، تسلیمہ نسرین، جنہیں نے کہا اسلام پر عورت جو ہے قید میں ہے. ارے بھیا، بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. اور میں اس بیان کے ذریعے یہ صرف مسلمانوں سے نہیں، میں اپنے تمام مذہب کے لوگوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام دنیا کے سارے مذہبوں کی حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے. آ کے یہاں ہم سے دیکھ لو، قرآن کھول کے دکھا دیں گے. تو پھر یہ جہاد کے نام پر کہیں سیوں کو مارا جاتا ہے، کہیں ہندوؤں کو، تو کہلاتا کیا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، وہ مسلمان نہیں ہیں. جو شریعت کے خلاف کام کرے وہ مسلمان نہیں ہے. میرے ہندو بھائیوں سن لو، پہلے پتہ کرو. آج سارے کا سارا یہودی اور منافق مسلمانوں کے بھیس میں ہے. جتنا دین کا دشمن ہے سب ہمارے صفوں میں گھسا پلا ہے. آج سے پڑھے لکھے جان سکتے ہیں کہ دین کا دشمن کون ہے. بس سیدھی سی بات ہے. جو اسلام کو بدنام کر رہا ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن بے پردہ چل رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن نامحرموں سے دوستی گاڑے ہیں. ہم کو نظریں جھکا کے چلنے کو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم نظروں میں نظریں ڈال کے بات کر رہے ہیں. ارے یہ جتنا مسلمان ہوا یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے ہوا. میں کتنی حدیثیں سچائیاں بتا دوں. ایک مسجد کے اندر
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों में एक मस्जिद के अंदर एक गंवार देहाती आया और मस्जिद में पेशाब करने बैठ गया। सहाबा तैश में आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि उसका पखाना पेशाब मत रोको, तुम उसका पखाना पेशाब बंद कर दोगे। जब वो कर चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया कि देखो ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ सजदे होते हैं, यहाँ इबादत अल्लाह की होती है, यहाँ अल्लाह का जिक्र है, यह हगने मूतने की जगह नहीं है। अब वो कुछ इतनी अच्छी शीरीनी गुफ्तगू, इतना अच्छा नेक और शरीफ, वो कभी उस दौर में जब आदमी नुमा जानवर थे उन्हें देखा ही नहीं। उस वक़्त तो चला गया, बाद में आके उसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। अरे एक नहीं, पूरी तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से। वही मक्के वाले, मक्का कुरैश वाले जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पे मजबूर कर दिया, जिनकी जीना मुहाल कर दिया, जिन्होंने कोई जुल्म नहीं, जो आप पर नहीं तोड़ा। जब फतेह मक्का हुआ तो उनकी हुलिया बैरिंग थी कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। सब कांप रहे थे सूखे पत्ते की तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला ऐलान करा, सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। और हम कह रहे फलाना दीन का दुश्मन है। अरे हम खुद हैं, हमारे आमाल दुश्मन हैं। ये जितने अज़ाब आ रहे हैं हमारे आमालों का नतीजा है। हदीसें पढ़िए, कुरान नहीं पढ़ सकते तो सही हदीसें पढ़िए। अल्लाह का वादा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा ना कभी झूठा हुआ है ना झूठा होगा। जो बात आपने 1500 साल पहले कह दी वो आज भी पूरी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान पानी में तैरते हुए तिनके की तरह होगा। तो साहबा ने हैरत से पूछा, क्या या रसूलल्लाह, क्या उस वक़्त मुसलमान बहुत मुख्तसर सी हालत में होंगे? कहीं नहीं, अब से 100 गुना ज्यादा होंगे। देखा आपने, आज हम जूते खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं अपने आमालों से। हम किसी को कसूरवार नहीं समझते, हम अपने को समझते हैं। उन मुसलमानों को समझते हैं जो अपने को मुसलमान कह के शरीयत पे अमल पैरा नहीं है। वो थुकवाई करा रहे हैं दीन इस्लाम की, वो थुकवाई करा रहे हैं। जिस चीज़ की इजाज़त शरीयत नहीं देती वो काम हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसके बाद सितम के कुरान पर पाबंदी, कुरान के समझने पर पाबंदी। कुरान हो रहा है, कुरान में बैठेंगे जिसमें फरिश्ते आसमान से उतर के बैठ रहे हैं, उसमें हम तुम ना बैठेंगे हैं? ये किसका कलाम है और क्या फतवा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? जो कुरान को अपने आगे करेगा कुरान उसे जन्नत में पहुंचा देगा, और जो कुरान को पसे पुष्ट डालेगा कुरान उसे जहन्नम में पहुंचा देगा। बस हम दूसरों को बस ऐब तलाशा करते हैं, हमारे मुंह हमेशा दूसरे, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम दिलो जान से किसी को कसूरवार नहीं। हम पहले पूरे शरीयत पर अमल पैरा हो जाएं। कौन है हमें जो आपस में भाईचारे से रोकता है? वो कौन मज़हब वाले हैं जो हमको नमाज नहीं पढ़ने देते? वो कौन मज़हब वाले हैं जो हमको नामहरमों से मिलने पर मजबूर करते हैं? वो कौन नामहरम जो हमको सनीमा देखने पर मजबूर करते हैं? है कोई? तो मेरे भाइयों, ये ना शक्ल से कोई मुसलमान होता है, ना टोपी से, ना दाढ़ी से। मुसलमान होता है शरीयत पे अमल। ज़बानी कहने की कोई वक़्त अल्लाह के यहाँ नहीं है, और अभी हम साबित करे देते हैं। दिन भर की मैं सैकड़ों हिंदू भाई नमस्कार कहते हैं और हम भी जवाब दे देते हैं। क्या हम हिंदू हो जाते?
हम करते हैं, वो अस्सलाम वालेकुम हमसे बेहतर अंदाज में, क्या वो मुसलमान हो जाते या हम हिंदू हो जाते? नहीं होते ना, क्योंकि ये ज़बानी है। कभी सुना कोई फतवा आया कि हमने नमस्कार कह दिया तो हम गैर मुस्लिम हो गए? यही हाल हमारा है, सिर्फ लफ्ज़ी है, सिर्फ ज़बानी मुसलमान है, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हम जलील और ख्वार कर रहे हैं इस दीन इस्लाम को। दीन इस्लाम तो वो था, उठा के देखिए आपकी सहाबाओं की हयात तैयबा, कि लोग सिर्फ इसलिए मुसलमान हो जाते थे कि अल्लाह कितने अच्छे ये लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं ये सब यहूदियों की, मुनाफिकों की साजिश है। आपको बता दें, मुनाफिक, आप समझते हैं कि मुनाफिक में कोई फ़र्क होता है? मुनाफिक कुरान भी पढ़ता है, कुरान, मुनाफिक नमाज भी पढ़ता है, मुनाफिक सब कुछ करता है हमारे आपके बीच, लेकिन सामने जब हम देख रहे होते हैं, क्योंकि ये सब वो देखने के लिए करता है, फिर अंदर की रिपोर्टें जाके वो अपने बॉस को देता है, जो ताने बाने इस्लाम को मिटाने के बुनते हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बताया जाए कौन मुसलमान है कौन नहीं है। नाम से तो मुसलमान नहीं कोई हो सकता। यहाँ तक कि किताब मामूली सी खोल के मुफ्ती के दिखा दूँ कि मैं सवाल किया गया कि क्या कलमा तवैयबा बग़ैर माने का पढ़ा दिया जाए तो कोई मुसलमान हो जाएगा? तो जवाब आता है मुसलमानों में गिनती हो जाएगी लेकिन मुसलमान नहीं होगा सही मानो। तो यहाँ तो पूरा कुरान ही नहीं पढ़े हैं, ना पढ़े हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, ना कुरान में बैठना चाहते हैं, ना समझ, बल्कि इसको पर्दे में पर्दा करा दिया। बहुत कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच है। बस मेरे भाइयों, ये पैगाम मैं तमाम दुनिया के मज़हबों में देना चाहता था कि पहले पता करें कौन मुसलमान है कौन नहीं है। बड़े बड़े टीवी पे भी चले जाते हैं बहस में बैठने के लिए, लेकिन वो भी हमने देखा एक बार ये मेरी वाली बात उनके मुंह से नहीं निकली, बस बहसबाजी जारी होती है। 4 किताबें आसमानी हैं, एक सिर्फ बताए दे रहे हैं। 4 में से अगर आपने एक किताब पर भी शक कर लिया कि आसमानी नहीं है, या एक बात पे शक कर लिया कि ये सही नहीं है, आप मुसलमान से खारिज हो गए। जाइए सऊदी अरब से दारुल उलूम देवबंद से भी फतवा लेके देख सकते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है, वो बात बताने की ज़रूरत है जो कि पता ही नहीं है लोगों को। लेकिन हमने क्या कहा शुरू स्टार्टिंग, मुंतखब, पसंदीदा। हर एक ने एक किताब, पूरी ज़िंदगी उस किताब को पढ़ते रहो। और इससे कुरान से ऊपर कर दी किताब को। कुरान तो तुम महीनों न खोल के देखो, सालों न खोल के देखो,